So today we will start a poem named The Lake Islay of Innisfree by William Yeats. Before we start the poem, we will discuss the theme of the poem. किस थीम पर यह पोएम विलियम ईट्स रचा है। हम रीडर्स को विलियम ईट्स इस पोएम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। The prominent theme of the poem, The Lake Islay of Innisfree, is related to glorification of the nature. Through this poem, Yeats wants to tell the reader and appeal the reader, पाठकों से आह्वान कर रहा है, to return to nature. In the poem, the poet compares the beauty and peaceful life in nature with the bleak routine life of cities. The poet through the poem makes the reader realize the peace that we desire. शांति जो हम जिसकी खोज करते हैं, जिसकी हसरत रखते हैं, cannot be achieved, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। In cities which are full of ugliness, pollution and stress, nature versus civilization is yet another theme of the poem. Difficult words and meaning in the poem. First word you write is wattles, twisted sticks for making fences. घेरान बनाने के लिए लकड़ी तो क्या कहते हैं, वेटल्स. नेक्स्ट वर्ड इज ग्लेड. ग्लेड मीन्स ओपन स्पेस, खुला वातावरण. नेक्स्ट वर्ड यू राइट वेज, अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल worn by women to protect or hide the face. Next word is cricket, insect related to grasshopper family but with shorter legs. झिंगुर कहते हैं हिंदी में. Next word is linnet, a small brown and grey bird. Next word is glimmer. Glimmer means something which is shining. एक phrase है poem में night and day. उसका क्या meaning है, right? Night and day means all the time. Next word is lapping. Lapping means striking. मारना, थपेड़ा करना, टकराना. और लास्ट वर्ड है heart's core, innermost part of the heart. Now we will write the summary of the poem. This poem is lyrical in nature. It is a musical poem. This poem explores poets' longing, poets की चाहत for the peace, शांति की चाहत. कहाँ की शांति की चाहत? Of Innisfree. Innisfree सैनिक ब्यूटी से भरा हुआ है. Innisfree प्राकृतिक स्थल है. वो चाहता है उस जगह को जाना, विजिट करना. प्लेस वेयर ही हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जहाँ बचपना वो गुजारा था इनिस्फ्री में. पोएट उस जगह पे जाना चाहता है. क्यों? सिटी लाइफ से वो तंग आ गया. सिटी लाइफ में क्या है? पोल्यूशन है, अगलीनेस है, स्ट्रेस है. इनिस्फ्री इज अ प्लेस नेम, अ प्लेस full of scenic beauty, natural environment. That place is very quiet and in the lap of nature. Therefore, poet wants to go there. इसलिए कभी वहाँ जाना चाहता है. Poet has a sweet memory of that place. कवि के हृदय में उस प्लेस के प्रति यादें भरा हुआ है. Why he wants to go to Innisfree again, leaving city life, शहर के जीवन को छोड़ करके, which is full of ugliness, stress, pollution. In the poem we see that the poet is reminded of his past, that is his boyhood. अपना लड़कपन उसको याद आता है. Where he had visited a peaceful natural place and seen there the beautiful lake of Islay. बचपन वहाँ बिताया था वो, फिर से जाना चाहता है शहर के जीवन को छोड़ करके. कौन? The poet wants to go there alone.
and wants to live there all alone. वहाँ अकेला प्रकृति के गोद में वह बसना चाहता है, रहना चाहता है. Poet wants to build a small cabin with clay and wattles. एक छोटा सा कमरा बनाना चाहता है कवि मिट्टी से और वेटल से, स्टिक से. ये मिट्टी का घर बनाना, कटिया का घेरान से घर को घेर के रखना, वेटल से अपना शेल्टर बनाना, ये सब क्या के प्रतीक है? प्रकृति के समीप रहना चाहता है, प्रकृति के बीच रहना चाहता है, प्रकृति में रहना चाहता है. कौन? पोएट. मिट्टी के घर में रहना, प्रकृति से नज़दीक रहना है. वहाँ पे क्या वो ग्रो करना चाहता है? क्या बैठा रहना चाहता है लेजी के तरह? नहीं, वहाँ कुछ काम करेगा. वो काम भी प्रकृति के उसका सामीप्य को ही दिखाएगा. द पोएट विशेस टू ग्रो बीन्स एंड गेट अ हनी बी हाइव फॉर हनी टू सर्वाइव ऑन. कभी वहाँ क्या ग्रो करना चाहता है? बीन्स. बीन्स क्या है? फली है, सीम के तरह सब्जी है, वो उगाना चाहता है वो. और हनी बी हाइव, तो मक्खी पालन करना चाहता है. इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द नेचुरल ब्यूटी एंड सराउंडिंग्स ऑफ द लेक इजले ऑफ इनसफ्री. द पोएट इज mesmerized at the scene of cloudy mornings. पोएट मंत्र मुग्ध हो जाता है. क्लाउडी मॉर्निंग, ठंडक से भरा हुआ मॉर्निंग है वहाँ पे. शाइनिंग स्टार्स, सुबह कैसा है वहाँ? क्लाउडी है. ये भी तारे टिमटिमा रहे हैं सुबह में वहाँ पे. शाइनिंग स्टार्स, चमकते हुए तारों के बीच रहना चाहता है वो. ग्लोइंग सन, चमकते हुए सूर्य. एंड बर्ड्स फ्लाइंग अराउंड इन द स्काई दैट वुड प्रोवाइड हिम पीस. He feels happy and relaxed there. वहाँ पे वो फील कर रहा है बिल्कुल शांति, रिलैक्स. To hear the pleasant sound of cricket, the poet feels the urgency to go there. That is to the Lake Islay of Innisfree. From the core of his heart, he can hear sound of the lake water hitting the shore. क्या वो सुन रहा है? अभी गया नहीं है, शहर में ही है, लेकिन क्या सुन पा रहा है? पानी जो है टकरा रहा है किनारा से. किसका पानी? लेक इजले का. आइन साबित करता है कि उसको अर्जेंसी है, वो तुरंत जाना चाहता है, फेड अप हो गया है. कहाँ के लाइफ से? सिटी लाइफ. इट सीम्स टू द पोएट दैट द लेक इजले ऑफ इनसफ्री इज कॉलिंग हिम. क्या फील करता है? कि मानो उसको बुला रहा है, आवाज दे रहा है. कौन? लेक इजले ऑफ इनसफ्री. He could hear the sound everywhere, standing on the crowded roads and pavements of the city. This indicates, यह साबित करता है, this proves that poet wants to escape from the ugliness and stressful life of the city into the peaceful surrounding of nature.